This is your lecture 13 of your analog electronics, and in this lectures we discuss about the types of your transistor configurations, and basically we discuss about the three types of transistor configuration. One is your common base, common emitter and common collector configuration. We already understand about the two types of transistors, your NPN and PNP transistors. What are the symbol of your NPN and PNP transistors? We already discussed. Now in this lectures we types of configurations are discussed. Now we start the types of configurations, and we see this is your PNP transistors. This principle of operations we already discussed. Now in the today lecture our focus is your type of transistors configurations, and see in this figure that is your two port model. In two port models there is in two inputs. This is your suppose this is your black box, and in the inside the black box there is in two input terminals. One is your Vi, another terminal is V2. This is the direction of current, and this is the direction of current I1 and I2. So this is the two port, means there is a two port. One port is the this is the one port, and this is the another port. तो your transistor model, if you go to the जब you will discuss जब हम लोग करेंगे small signal analysis, at the time we use this two port network. हम इस two port network का use करेंगे और दो इनपुट और आउटपुट के बीच में हम लोग एक कोरिलेशन जनरेट करेंगे. Now today's lecture is the type of transistor configuration, and we see this is your NPN transistors, and you know this is the NPN transistors symbol. This is your N, this is your P, and this is your N. In this case, you know, in P to N, this is your collector, this is your base, and this terminal is emitter. Okay. Now this is your collector side, and this is your base. So this is your NPN transistor. In NPN transistor, now base to emitter the current is flow, because P to N, this is PN junction diodes. I know the आप लोग को डिस्कस भी किए थे. There is in two diodes configurations, and this base to emitter terminal the flow of current. Here we see all the transistors, the current will direction is base to emitter, and base to. This three configuration is, you know, this is your NPN transistor. ये तीनों configuration will show this is your NPN transistor. आप PNP से भी बना सकते हैं, बट हम लोग मोस्टली NPN ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको बताया गया था कि N टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में आपको बताया गया था, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज हायर देन योर होल मोबिलिटी. ओके, तो most of the cases we use the NPN transistor. Now in NPN transistor all three are configuration your NPN. Why it is called as common base? देखिए common base जिसको आप common कर रहे हैं, the word is common, it means that input side is also present and the output side is also present. It is common between the input and output. वो input और output के बीच में एक common connection है, मतलब वो input terminal में भी present होगा and the output terminal. We see in this case, if you see this is your input side, this terminal is your input side, here is it, and this part is your input, and this part is your output. And we see, आप देखेंगे, अगर आप देख रहे हैं तो इस केस में इनपुट साइड में क्या इमीटर एंड बेस टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, आउटपुट साइड में कनेक्शन क्या हो रहा है कलेक्टर एंड बेस.
आप देखिए, अगर आप लिखते हैं इमीटर, इनपुट साइड में इमीटर बेस कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, आउटपुट साइड में क्या हो रहा है, कलेक्टर बेस। दोनों में अगर आप देखेंगे, इन बोथ केसेस द बेस आर कॉमन। दोनों में क्या कॉमन है, बेस। और आप बेस बना क्या रहे हैं, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। In the common base transistor, it means at the input side is also the base present and the output side is also the base present. See second figure. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कॉमन बेस की बात कर रहे हैं तो मतलब द बेस पार्ट इज योर कॉमन। अगर आप कॉमन इमीटर की बात कर रहे हैं तो द इमीटर इज कॉमन इन इनपुट साइड एज वेल एज आउटपुट साइड। ओके, इट मीन्स द इनपुट इज द बेस पार्ट इज ग्राउंडेड। जो भी कॉमन होगा डेट पार्ट इज योर ग्राउंडेड पार्ट। ओके, नाउ इन दिस सी दिस इज कॉमन इमीटर। हम क्या बना रहे हैं, कॉमन इमीटर। इसका मतलब क्या होगा, इनपुट में भी इमीटर्स होंगे एंड द आउटपुट इज ऑल्सो द इमीटर। इट मीन्स द बोथ साइड्स आर इमीटर इज कॉमन। वी सी in this side, this is your input side, this is the input, and this side we see in the red side, this is the output. Now in the input side, this is the base emitter and the output side collector emitter. We see the emitter part is common, so the emitter is common in both input and output, so it is called as common emitter and the part is grounded. Next we design as common collector. तो वर्ड इज सेज द कॉमन, क्या करना है आपको, कलेक्टर को कॉमन करना है। तो कलेक्टर को कॉमन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, द कलेक्टर पार्ट इज इन बोथ इनपुट एंड आउटपुट, सो दिस इज द इनपुट साइड एंड दिस पार्ट इज योर आउटपुट। नाउ वी सी, आप ऑल केसेस में देखिए, जब आप कॉमन बेस की बात कर रहे थे, आप कॉमन इमीटर की बात कर रहे थे, तो इस केस में आउटपुट आपको कहां से मिल रहा था, द आउटपुट टर्मिनल इज योर कलेक्टर टर्मिनल। सी इन दिस फिगर, आउटपुट आपको कहां से मिल रहा था, कलेक्टर टर्मिनल से मिल रहा था। बट जब आप कॉमन कलेक्टर करेंगे तो कॉमन कलेक्टर में आउटपुट विल कम्स फ्रॉम द इमीटर टर्मिनल। आपको आउटपुट कहां से मिल रहा था, इमीटर टर्मिनल से। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जिसको आप कॉमन करते हैं उसको आप क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। आपको ये बताया गया था कि अगर आप एक ट्रांजिस्टर डिजाइन करते हैं, emitter has a tendency to emit the majority carrier concentration. Base is the path to flow from the majority carrier concentration and collector is your output side to collect the majority carrier concentration. Okay, but here, so it means that in common base the collector is your output terminal and in common emitter the collector is the output terminal, but the common collector, the output terminal is your emitter, because your output term, you know, the if those terminals is common, either base, emitter या collector, that behave as a ground कर देते हैं, so it means that the output terminal is your common collector. Now we see in this configuration is very important. Now we see this is your common base configuration, very important, common base configuration, and we see this in this case, this is your NPN transistor, NPN transistor, and this is your PNP transistor, PNP transistor. Now in this case we see which one is your common, it is common base, because we see in the input side signal, input side में क्या, अगर हम इसे एज ए एम्पलीफायर बनाएंगे, आप सारे ट्रांजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, हम एम्पलीफायर बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एम्पलीफायर बना रहे हैं। तो एम्पलीफायर कब होता है, व्हेन द ट्रांजिस्टर बिहेव एज एन एम्पलीफायर, इट वर्क एज एन एक्टिव रीजन। तो एक्टिव रीजन का कंडीशन क्या है, इनपुट इमीटर टू बेस is your forward bias and collector to base is your reverse bias. Very important. Now we see in NPN transistor, we see
this NPN. Now base are common, we see this base part is your common in the input side as well as the output side. Now the base is this, suppose this is your NPN, this is your forward biased emitter base, and this is your reversed biased, and this is your output terminal across the collector side. We see the output will be connected from the output terminal. Okay. So in this case the base are the common, this IB is the base, and the current we see this one current, erase it, and we see this input current is this IB current is enter into the transistor, IC current is also enter into the transistor, and IE current will goes in the outward direction. तो total current क्या होता है? Those currents are in KCL, जितना करंट इंटर कर रहा है और जितना करंट एग्जिट कर रहा है बोथ आर इक्वल. I is equal to IC plus IB. I is equal to IC plus IB. This is your base total current. क्योंकि इमीटर करंट विल गोज इन द आउटवर्ड साइड में जा रहा है, और बेस करंट देखिए इनसाइड द ट्रांजिस्टर, और आईसी करंट इज आल्सो इनसाइड द ट्रांजिस्टर. तो जो करंट इंटर कर रहा है इक्वल टू द टोटल करंट आउटवर्ड. ओके. नाउ सी इन दिस कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर. कॉमन इमीटर का मतलब ये है कि हम लोग किसको कॉमन करेंगे? इमीटर को. तो देखिए सी in this case this is your NPN transistor, NPN, and this is your PNP transistor. Okay, this is your PNP transistor. Okay, now we see in this NPN. अब देखिए इस NPN ट्रांजिस्टर में हमने क्या किया, आप देख रहे होंगे, तो हमने इमीटर को कॉमन ले लिया है. इमीटर आप देख रहे हैं कि बोथ केसेस में इमीटर जो है दिस इज योर इनपुट साइड. इनपुट साइड में क्या हो रहा है? आईबी करंट इंटर, सेम चीज है, आईबी करंट इंटर कर रहा है, कलेक्टर करंट इंटर कर रहा है. दिस इक्वेशन इज ऑलवेज वैलिड. ये इक्वेशन आपका ऑलवेज वैलिड होगा. आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी. दिस इज फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर. अब देखिए क्या हो रहा है. इन द इनपुट साइड क्या है आपका? बेस इमीटर. आउटपुट साइड में क्या है? कलेक्टर टू emitter side. Okay, this is the condition when for your NPN transistor. So the emitter is your common. Now in common collector we see, in common collector में हम देख रहे हैं this is your we see this is your common collector. So this is your collector side and the collector part is your short circuit. Now in this case and this resistance is not RC, this resistance is RE. ओके, इमीटर रेजिस्टेंस. तो इस केस में क्या हो रहा है कि आपका कलेक्टर जो है वो कॉमन हो रहा है. तो क्या हो रहा है? दिस इज योर इनपुट साइड BC एंड योर आउटपुट साइड इज योर VEC. तो आउटपुट आपको कहाँ पर मिल रहा है? एट द इमीटर टर्मिनल पर आपको आउटपुट. इस केस में देखिए आपको आउटपुट कहाँ पे मिल रहा है? कलेक्टर टर्मिनल में. इस केस में आपको आउटपुट कहाँ पर मिल रहा है? कलेक्टर साइड में मिल रहा है. इन कॉमन कलेक्टर, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? कलेक्टर साइड को कॉमन कर रहे हैं. बोथ केसेस इनपुट एंड आउटपुट. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कॉमन वर्ड यूज करते हैं, चाहे कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, इसका कॉमन मीन्स इट विल बी बोथ इनपुट एंड आउटपुट आर कोरिलेटेड. इनपुट में भी होगा और आउटपुट में भी द वर्ड इज कॉमन. ओके, नाउ वी स्टार्ट. नाउ वी सी. अब यहाँ देखते हैं हम एक कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर की बात करते हैं. अगर आप कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में इनपुट सिग्नल देते हैं, एक साइनोसोडल इनपुट सिग्नल देते हैं, अगर आप साइनोसोडल इनपुट सिग्नल देते हैं तो आउटपुट में देखिएगा देयर इज एन 180 डिग्रीज फेज शिफ्ट. आप देखिए इन दिस इज योर कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर. आप इनपुट एक इस तरह से दे रहे हैं, दिस इज योर साइन वेव. सी, आप देखिए इनपुट आपका किस तरह से एक साइन वेव है, आउटपुट क्या मिल रहा है? देयर इज एन लुक लाइक दिस. देयर इज एन 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप ये चीज याद रखिए कि कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में
180 degrees phase shift between the input and output. This thing is already हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम आपको हाइब्रिड मॉडल स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम इनपुट और आउटपुट के रिलेशन की बात करेंगे कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में, तो देयर इज एन 180 डिग्रीज फेज शिफ्ट बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। आप क्या दे रहे हैं इनपुट में? वोल्टेज सप्लाई। दिस इज द इनपुट में आप दे रहे हैं वोल्टेज, एक साइनोसोडल आप वोल्टेज दे रहे हैं, और आउटपुट में 180 डिग्रीज का फेज शिफ्ट हो रहा है। सेम केस आप देखिए जब आप कॉमन बेस की बात करेंगे, अगर आप इनपुट में वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, अगेन साइन वेव यहाँ भी दे रहे हैं, लेकिन देयर इज एन 0 डिग्री फेज शिफ्ट। सेम आप साइन वेव दे रहे हैं और इसी साइन वेव को ये क्या कर रहा है एम्पलीफाई कर दे रहा है, बट कोई फेज शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो इन दिस केस फॉर द जब कॉमन बेस की बात करेंगे तो 0 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। अगेन आप कॉमन कलेक्टर की बात कीजिए, अगेन आप वोल्टेज एक साइन वेव दे रहे हैं, आउटपुट भी आपका एक एम्पलीफाई होके आ रहा है, बट 0 डिग्री फेज शिफ्ट। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम वोल्टेज एक साइनोसोडल वेव देंगे इनपुट में, तो कॉमन बेस एंड कॉमन ट्रांजिस्टर में आप देखेंगे 0 डिग्री फेज शिफ्ट होगा, एंड कॉमन इमीटर 180 डिग्री फेज शिफ्ट। ये जब हम लोग हाइब्रिड पढ़ेंगे तो भी डिस्कस, बट यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना है, कभी आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, या ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चंस आते हैं कि अगर इनपुट में अगर आप वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं तो आउटपुट में 180 डिग्री फेज शिफ्ट जो होगा वो किस कॉन्फ़िगरेशन में होगा, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। तो आपको पता होना चाहिए कॉमन इमीटर में 180 डिग्रीज का फेज शिफ्ट होता है। Now the first configurations we discuss common base transistors. तो first configuration हम देखेंगे that is your common base configuration। देखिए क्या हो रहा है, आपका ये क्या है base, this is your base, okay, and yes, and this is your PNP transistor, PNP transistor, ठीक है। तो PNP ट्रांजिस्टर में आपने कॉमन किसको किया है, बेस को। जिसको आप कॉमन करेंगे उसको क्या कर देना है, हमें ग्राउंड कर देना है। मैंने सीधे ग्राउंड कर दिया। अब देखिए बेस आपका क्या है, कॉमन है, इमीटर साइड में बेस है, और सॉरी इमीटर और बेस, और आउटपुट साइड में क्या है, कलेक्टर एंड बेस। द बेस इज कॉमन बिटवीन बोथ इनपुट एंड आउटपुट। अब हमें अगर इस ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर डिजाइन करना है तो क्या करना होगा, तो जब ट्रांजिस्टर को आप एज एन एम्पलीफायर की बात करेंगे तो आपका कंडीशन क्या होगा, इट इज इनपुट साइड इज योर फॉरवर्ड बायस, मतलब बेस टू इमीटर फॉरवर्ड बायस, एंड कलेक्टर टू बेस इज योर रिवर्स्ड बायस्ड कंडीशन, ओके। तो जब आप फॉरवर्ड बायस्ड करेंगे तो P और N को फॉरवर्ड बायस करने के लिए क्या करना होगा, भी, और कलेक्टर टू बेस को रिवर्स बायस करने के लिए क्या, कलेक्टर साइड में क्या है आपका P, और बेस साइड में आपका क्या है N। तो इसको रिवर्स बायस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, P को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा और N को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना होगा। तो आपका जो ये होगा ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया कि कॉमन बेस ट्रांजिस्टर बनाया, उस कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में हमने ये सारा चीज़ कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इस पॉइंट को एक्सप्लेन अपने व्यू में करते हैं, आप लोग इजीली अंडरस्टैंड, ठीक है। देखिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है समझने में तो इस तरह समझिए, एक आप एनपीएन ट्रांजिस्टर लीजिए या पीएनपी जो आपकी, हम एक एनपीएन लेते हैं, पीएनपी का सर्किट आपने देख चुके हैं, ठीक। हमने ये सर्किट बनाया, अब क्या करना है हमें, देखिए हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया फॉर लिमिटिंग रेजिस्टेंस, सेफ्टी फॉर द इनपुट साइड, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस में हमने, सॉरी, दिस इज योर नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये आपका क्या है, दिस इज योर इमीटर
दिस इज बेस एंड दिस इज योर कलेक्टर। आपने इमीटर बेस को क्या किया, फॉरवर्ड बाइस्ड कर दिया, क्योंकि ये आपका किस तरह का ट्रांजिस्टर है, एन पी एन। तो ये पी एन जंक्शन डायोड में, तो पी इज द पॉजिटिव साइड और एन आपका निगेटिव साइड है, एंड दिस इज योर, मान लीजिए आपका लिमिटिंग रेजिस्टेंस आर ई। ठीक है, आपने यहाँ पर इसको ग्राउंड कर दिया। अब हमको क्या करना है, इसे एक्टिव रीजन में बनाना है, तो कलेक्टर बेस को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स बाइस्ड। अब आप देखिए, कलेक्टर बेस को अगर रिवर्स बाइस्ड करना है, इसका मतलब कलेक्टर आपका कैसा है, एन साइड है, और बेस क्या है आपका पी। इसका मतलब ये पी एन जंक्शन डायोड, और उसको रिवर्स करना है, तो एन को हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, और पी को निगेटिव टर्मिनल से कर देंगे, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बाइज वी सी बी। ओके, एंड दिस इज वी बी ई। ओके, नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, this is the direction of current of IB, and this is the direction of current IC, and this is the direction of current I E। ठीक है, तो आपका इनपुट साइड कौन सा है, दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। तो इनपुट किसके, बेस तो आपका कॉमन है, बेस कॉमन है, तो इनपुट साइड में करंट क्या फ्लो हो रहा है, द इनपुट, देखिए आप इनपुट साइड में लिखिए, इनपुट साइड में द करंट क्या होगा, इन द इनपुट साइड करंट क्या होगा, दिस करंट इज आई ई, दिस इज योर इनपुट करंट, क्योंकि बेस इज कॉमन, एंड द इनपुट वोल्टेज क्या होगा, and this is your input voltage VB. Input current is I and the input voltage is VB. This is the input terminal. ये हमारा क्या हो गया, इनपुट टर्मिनल हो गया। आउटपुट टर्मिनल में चलते हैं, यू अंडरस्टैंड। नाउ वी गो टू द आउटपुट साइड। अब हम आउटपुट साइड में देखेंगे, आउटपुट साइड में हमारा करंट किसके कारण हो रहा है, कलेक्टर, बेस तो कॉमन है, तो इन द आउटपुट साइड अगर हम आउटपुट को देखते हैं, तो आउटपुट जो होता है, आउटपुट साइड में करंट क्या, आउटपुट करंट क्या है आपका, द आउटपुट करंट इज आई सी, कलेक्टर करंट, और द आउटपुट वोल्टेज क्या है आपका, इज वी सी बी, इट इज VCC, and there is a mistake, sorry, it's a V and it's called VE, क्योंकि VB तो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा आपका, और VCB इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो आप आउटपुट वोल्टेज किसके क्रॉस निकाल रहे, कलेक्टर टू बेस। इनपुट वोल्टेज आपका किसके क्रॉस हो रहा है, बेस टू इमीटर। और ये तो आप क्या दे रहे हैं, दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज VE एंड VCB। ओके, नाउ दिस इज योर कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशंस। आप कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो इनपुट साइड में जो हमारा करंट था, इनपुट करंट, दिस इज योर IE, इमीटर करंट था, और इनपुट वोल्टेज ड्रॉप क्या था, VBE।
दिस इज योर इनपुट वोल्टेज ड्रॉप VB फॉर योर NPN ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब ये देखिए क्या होता है, आपने देखा जस्ट इनपुट साइड हमारा क्या, इनपुट करंट इज इमीटर करंट और द आउटपुट इनपुट वोल्टेज इज VB। And what is this meaning? VCB is equal to 0, VCB is equal to 8 and VCB is equal to 18। अगर आपको याद हो द अर्ली इफेक्ट एक्सप्रेशन, आपको अर्ली इफेक्ट बताया गया था। अर्ली इफेक्ट में क्या कहा जा रहा था? अर्ली इफेक्ट क्या था? इफ द कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इज इंक्रीजेज, अगर आपका कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इंक्रीज होगा, द बेस विड्थ विल बी डिक्रीजेज एंड द मोर एंड मोर करंट विल रीचेज टू द कलेक्टर साइड। इसका मतलब ये है, if collector to base voltage is increases, now the emitter current IE is increases। ठीक है, and this effect is called as early effect। this effect This effect is called as early effect। If collector to base voltage is increases, your base width is decreases and more amount of current is increases। So I current आपका क्या होगा? increase होता जाएगा। तो आप इस तरफ अगर बढ़ते जाएंगे तो आपका I करंट, जैसे जैसे इस तरफ करंट आपका इंक्रीज होता जाएगा तो I करंट विल बी इंक्रीजेस मोर एंड मोर एंड दैट अफेक्ट इज कॉल्ड एज अर्ली अफेक्ट। ठीक है, now this is your output characteristics। Now this is your output characteristics of common base transistor, and we'll see there are three regions I already discussed, and here we see, and this is your input current IC। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में है? आपका करंट और वोल्टेज के बीच में। दिस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज, IC वर्सेस VCB। IC इज योर आउटपुट करंट एंड VCB इज योर आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, देखिए अब इस केस में क्या है, इफ I करंट इज जीरो, अगर आपका I करंट, दिस इमीटर करंट अगर जीरो होता है, but your output current, this collector current is not equal to 0। ठीक है, बट आप देख रहे हैं कि अगर आपका दिस इमीटर करंट 0 है, बट आप देख रहे हैं कि कलेक्टर करंट इज नॉट इक्वल टू 0। कलेक्टर करंट आपका नॉट इक्वल टू 0 है, क्यों? क्योंकि अगर आप एक इक्वेशन हमने लिखा था, तो हमने इक्वेशन लिखा था that is IC equal to beta times of IB plus 1 plus beta times of ICO। ठीक है, this equation is I already expressed। In this case, if the emitter current is 0, it means that there is a no supply across this। अगर इमीटर करंट जीरो का मतलब ये है कि हम लोग इनपुट में कोई भी सप्लाई नहीं दे रहे हैं, देयर इज ए नो सप्लाई क्रॉस दिस। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक ट्रांजिस्टर सपोज अगर आप एक कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की ही अगर आप बात करते हैं, ठीक, और अगर आप इनपुट में कोई सप्लाई नहीं देते, अगर ये जो आपका इनपुट साइड है यहाँ पर आप कोई भी सप्लाई नहीं देते, देयर इज ए नो सप्लाई, तो इनपुट करंट क्या होगा? जीरो होगा। इसका मतलब तो यही है कि अगर आप कोई भी सप्लाई नहीं देते इनपुट साइड में,
तो इनपुट करंट इज 0, इट मीन्स दैट दिस IE इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपका इनपुट करंट 0 है। तो अगर आपका IE करंट 0 है और आपने कोई भी सप्लाई नहीं दिया है, इट मीन्स दैट IB इज इक्वल टू ऑल्सो 0। सप्लाई आपका 0 है क्योंकि आपने इनपुट ही नहीं दिया है। बट एट द टाइम आप देखिए कि अगर आप सी इन दिस इक्वेशन, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, आप कोई भी सप्लाई नहीं दे रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपका ये पार्ट 0। तो IC इक्वल टू आप देख रहे होंगे 0 प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ICO, and this is not ICO is nothing can be your leakage current when the emitter base terminal is your open circuit. Due to this leakage current, this without any input signal, this due to this leakage current, this collector currents are present. इसी कारण हम लोग ये कहते हैं कि जब हम लोग इमिटर करंट की वैल्यू 0 हो रही है, तब भी हमारा कलेक्टर करंट नॉट इक्वल टू 0 है, ड्यू टू दिस लीकेज करंट। ओके, सो सी इन दिस फिगर, आप इस फिगर में देखिए, this I current is 0 but your current is not equal to 0. Now your I current is increases and this is the waveform of your output characteristics. Okay, and in this region, this is your, and see in this parabolic form, अगर आप एक parabolic बनाएंगे, this region is your saturation region and I less than equal to 0, and below this region is your cutoff region, and between this region is the active region. ये जो आप region देख रहे हैं, ये region आपका active region है. In this region the transistor is behave as an amplifier. इस रीजन में हमारा ट्रांजिस्टर जो है आपका एम्पलीफायर के जैसा बिहेव करेगा. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. आप लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स, बिल्कुल जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बनाया गया है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि कैसे आपका कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है. ठीक है, आप देख रहे होंगे कि देयर इज एन कांस्टेंट वोल्टेज. ठीक है, नाउ और वाई एक्सिस पे आपका क्या है, करंट. एक्स एक्सिस पे आपको क्या मिल रहा है, वोल्टेज. स्लोप क्या होगा, व्हाट इज स्लोप. स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है y बाय एक्स. मैथ्स में आपने पढ़ा होगा स्लोप y बाय एक्स. तो y एक्सिस आपका करंट है, x एक्सिस आपका वोल्टेज है, तो करंट बाय वोल्टेज आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन रेजिस्टेंस. इसका मतलब इसका जो स्लोप है, आपको ये जो स्लोप आपको मिलेगा, दिस स्लोप इज नथिंग कैन बी 1 बाय आर. ये स्लोप जो होगा क्या होगा, 1 बाय आर. इट इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस. तो दिस स्लोप इज योर कंडक्टेंस स्लोप या 1 बाय आर स्लोप. इस केस में भी देखिए, ये आपका क्या है, y एक्सिस पे करंट, x एक्सिस पे क्या है, वोल्टेज. तो इसका स्लोप जो होगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का जो स्लोप होगा, वो क्या होगा, करंट बाय वोल्टेज, इट इज इक्वल टू 1 बाय आर. यही आपका क्या बनेगा, स्लोप. So this is the input characteristics of NPN transistor and this is the output characteristics of your common base transistor. तो ये common base transistor का input and output characteristics है. और आप देख रहे हैं कि the voltage will start from this. This effect is your early effect. Okay. Now we start the common emitter transistor. इन द कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में आप देखेंगे, दिस इज योर एनपीएन ट्रांजिस्टर, एन. एंड दिस ट्रांजिस्टर इज एन पी एन ट्रांजिस्टर. अब इस केस में हमने क्या डिजाइन कर रहे हैं, कॉमन इमीटर. तो इमीटर इज कॉमन इन बोथ साइड. आप देखिए इस साइड, दिस इज बेस टू इमीटर इनपुट साइड में, और कलेक्टर टू इमीटर में हमारा क्या हो रहा है, कॉमन है. ठीक है, अब देखिए आपका पी साइड कैसा है, पॉजिटिव. एन साइड कैसा है, सॉरी बेस आपका क्या है, पी,
और इमीटर क्या है आपका, एन टाइप मटेरियल से, तो आप इसको फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो क्या होगा, बी, P is the positive, it is connected as positive and negative. Okay, and this is your multimeter and this is your voltmeters are connected in volt. Now here we see in this for the in the output side, अगर आप देखिए आउटपुट साइड में आपका कलेक्टर क्या है N, और इमीटर आपका कैसा है, इमीटर इज ऑल्सो द N टाइप। आपको कलेक्टर को क्या करना है, रिवर्स बाइस करना है, तो कलेक्टर में आपने कैसा किया, पॉजिटिव, पॉजिटिव साइड आपने दिया, और एन में आपने इमीटर को आपने क्या किया, निगेटिव साइड कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दिस इज फॉर द, एंड इन दिस केस वी सी दिस इज द कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज योर कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या है, एक ट्रांजिस्टर लेना है सिंपली। आपने क्या किया, एक ट्रांजिस्टर ले लिया, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर में इमीटर को आपने क्या कर दिया, कॉमन, और उसके बाद हमने क्या किया, कनेक्शन स्टार्ट किया। तो ये कैसा ट्रांजिस्टर है, एन पी एन। आपको पता है कि अगर ट्रांजिस्टर को एक्टिव में रखना है तो इमीटर बेस जंक्शन कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस, तो आपने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया। और आपको पता है कि ट्रांजिस्टर को अगर एक्टिव रीजन में रखना, कलेक्टर बेस जंक्शन की हम बात कर रहे हैं, उसको रिवर्स बायस करना है, ना कि इमीटर कलेक्टर को करना है। अब नेक्स्ट आपका दोनों ट्रांजिस्टर कैसा है, तो कलेक्टर को आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव साइड, और इसको आपने क्या कर दिया, नेगेटिव साइड। तो डेट इज योर, तो आप देखिए सी इन दिस फिगर, हमने सेम सप्लाई दिया है, ठीक है। तो दिस इज द वे, एंड दिस वोल्टेज इज VCC and this is your RC, RB and this is your VB। सेम सर्किट को हमने, बस हमने इस बार क्या किया, इमीटर को कॉमन बना लिया। जब आपने इमीटर को कॉमन बना, अब इस केस में देखिए इनपुट साइड क्या हो जाएगा आपका, इनपुट टर्मिनल पर करंट क्या होगा, करंट किसके कारण फ्लो होगा, तो आपको पता है कि करंट, क्योंकि इमीटर आपका कॉमन है, तो कॉमन है तो उसमें नहीं होगा, तो क्या होगा, आई बी, दिस इज योर आई बी करंट बेस, this is your IE and this current is IC, ठीक है। और वोल्टेज क्या होगा, इनपुट वोल्टेज किसके क्रॉस हो रहा है, इमीटर बेस, तो डेट इज VBE। अब यहां पर एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि सर हम VBE क्यों लिखे, VEB क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए आप VBE इसलिए लिखेंगे कि जो आप पहला टर्मिनल लिखे हैं वो पॉजिटिव है, तो आप देखिए कि किस टर्मिनल पर पॉजिटिव कनेक्ट है, VBE पर या VBE पे, बी पे कनेक्ट है पॉजिटिव आपका सप्लाई, या इमीटर पे कनेक्ट है। तो आप देख रहे होंगे कि पॉजिटिव जो है आपका बेस पे कनेक्ट है और इमीटर में निगेटिव कनेक्ट है, तो इसलिए हम लोग ने इसको लिखा VBE, क्योंकि जो पॉजिटिव होगा उसको सबसे पहले हायर पोटेंशियल और उसके बाद लोअर पोटेंशियल। तो आपने देखा कि इनपुट में जो करंट फ्लो हो रहा है वो ड्यू टू बेस, और आउटपुट इनपुट में जो वोल्टेज जो हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है वो VBE। ओके, सेम अब हम लोग आउटपुट साइड में देखेंगे, आउटपुट साइड में देखते हैं। आउटपुट साइड में देखिए तो कलेक्टर करंट, क्योंकि आपका क्या है, इमीटर कॉमन है, तो आप करंट किसके कारण होगा, आउटपुट कलेक्टर करंट, दिस इज द करंट। या आउटपुट साइड में जो करंट होगा वो किसके कारण होगा, कलेक्टर, ओके। और वोल्टेज, वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, VCE,
अब VCE होगा या VEC होगा, तो हम देखेंगे क्या किस सप्लाई में पॉजिटिव है और किस सप्लाई में निगेटिव है। तो आप देख रहे हैं कि कलेक्टर साइड में पॉजिटिव कनेक्ट है और इमीटर साइड में निगेटिव। तो आपको पता है कि जो हायर पोटेंशियल कनेक्ट होता है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोअर पोटेंशियल को लिखते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा VCE। नाउ अब हम लोग चलेंगे कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स डायग्राम, इनपुट और आउटपुट। हमें पता है कि इनपुट में करंट किसके कारण फ्लो हो रहा है, बेस, तो हमने लिखा IB। तो देखिए बेस करंट जो होता है उसका रेंज होता है माइक्रो एम्पियर, कलेक्टर करंट और इमीटर करंट का रेंज जो होता है वो मिली एम्पियर। क्योंकि माइक्रो एम्पियर इसलिए होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, क्योंकि आपको पता है बेस रीजन जो होता है वो सबसे लाइटली डोप्ड होता है, क्योंकि वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन फैक्टर होता है, इसलिए हम उसको लाइटली डोप्ड करते हैं। और इनपुट में आपको पता है इनपुट वोल्टेज हमने लिखा था क्या, VBE। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन है कि जब आप कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे आप कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, आपका करंट डिक्रीज होता जा रहा है, योर IB करंट इज डिक्रीजेस। क्यों क्यों हम ये ऐसा कह रहे हैं कि आपका VCE इंक्रीज हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि आपका बेस करंट डिक्रीज हो रहा है। व्हाट आर द रीजन, इस रीजन को देखते हैं कि ये क्यों हो रहा है। ओके चलिए, ठीक है, देखिए आपको यहाँ पर देख रहे हैं, तो एक ट्रांजिस्टर अगर आप लेते हैं सिंपली, I erase it and then understand. What are the concept, एक बहुत ही important concept है, which is that question is asked in many times. आप एक नॉर्मल NPN ट्रांजिस्टर ड्रॉ कीजिए। दिस इज योर NPN ट्रांजिस्टर। इस तरह से इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एंड दिस इज द इजी टू अंडरस्टैंड योर। एक हमने क्या डिजाइन कर लिया, एक हमने डिजाइन कर लिया है, that is called your NPN ट्रांजिस्टर ऑफ कॉमन बेस। ठीक है, कॉमन बेस भी नहीं, एक NPN ट्रांजिस्टर हमने डिजाइन कर लिया। अब इस NPN ट्रांजिस्टर को हमें एक ये ट्रांजिस्टर है हमारा, एक NPN ट्रांजिस्टर, दिस इज योर N, this is your P and this is your N, this is your collector, this part is your base and this is your emitter। ठीक है, सबसे पहला कंडीशन समझिए कि अगर आपको ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखना है, ट्रांजिस्टर को क्या रखना है, अगर आपको ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखना है तो क्या करना पड़ेगा, बेस इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस्ड करना होगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये है कि इसको आपको नेगेटिव से कनेक्ट करना होगा, इसको आपको पॉजिटिव से कनेक्ट करना होगा, यह बेस इमीटर का होगा। अगर आपको बेस कलेक्टर की बात कर रहे हैं, बेस कलेक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि कलेक्टर और बेस में क्या होगा। अगर आपको ट्रांजिस्टर को एक्टिव में रखना है तो कलेक्टर बेस जंक्शन को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। तो रिवर्स का मतलब क्या, इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। ठीक है, अगर इसको पॉजिटिव किए तो ये कलेक्टर का ये टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव, और ये टर्मिनल क्या होगा, ये इमीटर का ये टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये इमीटर है। क्लियर, ठीक, ओके। इसका मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है आपका, वी बी। ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, डेट इज VCB। और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो रहा है, देखिए इसके क्रॉस आपका वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है VBE। ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है VCB, और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आपका VCE।
ई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी निगेटिव, तो वी सी, क्योंकि आपको पता है कि जो पहला टर्मिनल लिखते हैं वो हम लोग पॉजिटिव लिखते हैं, फिर निगेटिव। अब हम क्या रिलेशन जनरेट करते हैं यहाँ से, वोल्टेज का क्या रिलेशन जनरेट होगा। ठीक है, देखिए ये आपने समझ गए, ये मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिया कि बेस इमीटर आपका किस तरह से फॉरवर्ड, अगर हमें ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में रखना है तो बेस इमीटर को आपने क्या किया, फॉरवर्ड बायस, और कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस किया। नो, अब हम लोग डिजाइन क्या कर रहे हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर कॉमन इमीटर। ठीक है, जहां पर आप इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव वीबी। ठीक है, और ये आपका, ठीक है, और आपको पता है कि ये बेस और ये कलेक्टर के बीच में क्या होगा, रिवर्स बाइस, तो डेट इज माइनस दिस वी बी सी। ठीक है, और इस दोनों के बीच में आपका कैसा है, प्लस, या प्लस है तो ये क्या है आपका माइनस, दैट इज वी सी ई। ठीक है, ओके। नाउ अब हम इस दोनों के बीच में देखिए, ये दोनों अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो हम कह सकते हैं वी सी ई इज इक्वल टू, सॉरी इट्स मिस्टेक, वी सी बी, इसमें वी सी इज इक्वल टू, अगर आप देखिए इस पोटेंशियल ड्रॉप को आप क्या लिख सकते हैं, वी सी को वी सी माइनस ऑफ वी बी लिख, सॉरी वी सी माइनस ऑफ वी लिख सकते हैं, दिस इज द वोल्टेज डिफरेंस, वी सी माइनस ऑफ वी बी। ठीक है, नो हम इस तरह से रिटर्न लिख सकते हैं, तो क्या हम इस तरह से ऐसा लिख सकते हैं, देखिए वी सी ई, ठीक है, वी सी ई, देखिए वी सी इज इक्वल टू वी सी माइनस ऑफ, आपने लिखा वी, यू अंडरस्टैंड, वन बाय वन, और हमने क्या किया, यहां पर लिखा वी सी माइनस वी बी, एक चीज समझाने के लिए, प्लस वी बी और माइनस भी। क्या हम इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं, वी सी माइनस वी को, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब देखिए वी सी को आपने लिखा था क्या, वी सी माइनस वी, तो वी सी माइनस वी बी को हम ऐसा लिख सकते हैं, वी सी बी, और प्लस वी बी माइनस वी ई को हम ऐसा लिख सकते हैं, वी बी, ऐसा लिख सकते हैं ना, वी सी। अब रिलेटिव वेलोसिटी का अगर आपको फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा तो डेट इज द सेम वे। ओके, अब देखिए हमने वी सी फाइंड कर लिया, सी इन दिस वी सी बी, वी बी और वी सी, ये थ्री वोल्टेज ड्रॉप आपको पूरे ट्रांजिस्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने थ्री ट्रांजिस्टर के जो भी वोल्टेज ड्रॉप हैं वो हमने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया कि वी सी इज इक्वल टू वी सी बी प्लस वी बी। ठीक है, अब हमारा मेन फोकस क्या है, मेन फोकस है हमारा कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। हमें पता है कि कलेक्टर टू बेस वोल्टेज अगर हम बढ़ाएंगे,
अगर हम कलेक्टर टू बेस वोल्टेज अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका क्या होगा, आपका जो है अर्ली इफेक्ट होगा, डिप्लीशन, जो आपका क्या कहते हैं बेस का एरिया, बेस का जो विड्थ है दैट विल बी डिक्रीजेज इफ द कलेक्टर टू बेस वोल्टेज अगर आपका इंक्रीज होगा। ओके, नाउ तो इस इक्वेशन से, सॉरी, ना इस रिलेशन से हम क्या फाइंड करेंगे, देखिए अब हमने जो रिलेशन फाइंड किया है, ठीक है, तो रिलेशन हमने क्या फाइंड किया, रिलेशन हमने फाइंड किया है वी सी बी, सॉरी वी सी ई इज इक्वल टू वी सी, that is VCB, sorry, that is VCB that is VCB plus VBE। ओके, तो ना VCB इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, VCB इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं VCE माइनस ऑफ VBE। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, इफ यू इंक्रीज द कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज, अगर आप कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो आपका कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इंक्रीज होगा, और अगर आपका कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इंक्रीज होगा तो आपको पता है कि ट्रांजिस्टर जब एक्टिव रीजन में होता है कलेक्टर टू बेस वोल्टेज आपका रिवर्स बाइज्ड होता है। तो जैसे जैसे आप कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो आपका क्या होगा, डिप्लीशन विड्थ, जो आपका डिप्लीशन विड्थ है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा बेस रीजन में, सॉरी डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज होगा, इट्स माय मिस्टेक, डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज करेगा एंड द एरिया विल बी रिड्यूसेस इन द बेस रीजन, आपका एरिया जो है बेस रीजन में रिड्यूस्ड होगा। तो अगर आप कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, ओके, तो ये रिलेशन हमने फाइंड किया। यहाँ पर देखिए सेम वे है कि अगर आप कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्या बनाया कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर, तो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में आउटपुट साइड में वोल्टेज ड्रॉप क्या है Vc, अगर आप Vc के वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इंक्रीज होगा, तो आपका जो डिप्लीशन विड्थ है वो इंक्रीज करेगा, तो जो बेस करंट है वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। तो इस केस लिए होता है कि जैसे जैसे आप Vc बढ़ा रहे हैं आपका जो बेस करंट Ib है वो क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, एंड दैट अफेक्ट इज कॉल्ड एज अर्ली अफेक्ट। इस अफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ली अफेक्ट। ओके, दिस अफेक्ट इज कॉल्ड एज योर अर्ली अफेक्ट। अब हम लोग को पता आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, आईसी वर्सेस वीसी, क्योंकि आउटपुट वोल्ट करंट क्या है आईसी एंड वीसी, एंड दिस इज द, और आउटपुट करंट क्या है आईसी आईबी जीरो। तो आप देख रहे हैं दिस इज द आईबी जीरो डॉट डॉट डॉट, फिर भी आप आईसी करंट हो रहा है ड्यू टू लीकेज करंट, एंड दिस इज योर कट ऑफ रीजन सी, एंड दिस इज योर saturation region, this is the parabolic structures, and this region is your active region. This is the output characteristics of common emitter, and this is the base part. Okay, the base current is increases,
your IC current will be increases. Now, and see in this common collector, in common collector the collector is a common. कॉमन कलेक्टर में क्या हो, कलेक्टर को आप कॉमन करेंगे तो जब आप कलेक्टर को कॉमन करेंगे तो क्या होगा, योर कलेक्टर पार्ट इज ग्राउंडेड. इस बार आपका इनपुट में क्या है, बेस टू कलेक्टर, और आपका आउटपुट में क्या है, कलेक्टर टू इमीटर. किस तरह का ट्रांजिस्टर है, NPN. ओके, तो आपने क्या किया, बेस टू कलेक्टर वोल्टेज को आपने बेस साइड में आपने क्या किया, दिस इज NPN, P इज द पॉजिटिव और N इज द नेगेटिव. ओके, एंड इन द आउटपुट साइड में this is the reverse, collector is the reverse side, N is positive and this is E is the negative. और इस कॉमन कलेक्टर में आप देख रहे हैं कि आउटपुट विल बी इन द इमीटर साइड. आउटपुट जो आपको मिल रहा है वो इमीटर टर्मिनल पर आपको आउटपुट मिल रहा है इन कॉमन इमीटर. एंड दिस इज अगेन योर इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर कॉमन ट्रांजिस्टर्स. This is the input and output characteristics of common transistor. Now this is the very important statement, and you remember this is the very important for your objective exam. Input resistance in common base is very low and the output resistance is very high. Current gain is less than 1, that is the value of alpha, and the lower than common emitter. Power gain is the lower than. ठीक है. Now the input resistance is medium, output resistance is medium, current gain is greater than 1, more than 1, and it is in high. Power gain in common emitter transistor, the power gain is the highest. ये चीज ध्यान रखिएगा, जो कॉमन इमीटर का पावर गेन सबसे हाईएस्ट होता है. In common collector, the input resistance is high and the output resistance is low, more than 1, and the higher than common base but lower than common emitter. तो आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या आएगा कि कॉमन इन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन हायर इनपुट रेजिस्टेंस, तो कॉमन कलेक्टर. सबसे लोअर इनपुट रेजिस्टेंस होगा तो कॉमन बेस. ठीक है. और हायर आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करेगा तो डेट इज योर कॉमन बेस. कॉमन बेस का आउटपुट रेजिस्टेंस हाई होता है और इनपुट रेजिस्टेंस लो होता है. पावर गेन जो होता है लोअर देन कॉमन इमीटर, हायर देन. तो सबसे हाईएस्ट अगर बात किया जाए तो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर का, तो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर का पावर गेन इज द हाईएस्ट. तो दिस थिंग विल नोट डाउन, ये आप अपने नोट कर लीजिए. दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. तो टुडे